Good morning, everyone. Let's continue our second chapter about diseases. How many of you done homework and how many of you sent to me? Yes, I think you did your homework and sent to me as early as possible. Okay. We are already studying this second number chapter, which name is Health and Diseases. What is health? Health is the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of any diseases. यह आपको तो याद हो गया होगा और आपको पता भी चला होगा कि हेल्थ कैसे रखनी चाहिए खुद की, राइट? We already learn about infectious diseases like tuberculosis, hepatitis, dysentery, cholera, typhoid, about its pathogens, mode of infections, symptoms, as well as how we do prevention and treatment of this kind of diseases. Then we started some taking information, learn about some infectious diseases. We already seen about some infectious diseases and we taken already some diseases like swine flu, dengue, its symptoms, AIDS as well as rabies, also the infectious diseases through animals. Up to this page number 9 our chapter is over. Now we'll do continue our chapter from non-infectious diseases. Non-infectious diseases means what? Do you know really what is non-infectious disease? Diseases which do not occur through the infections and body conditions are called एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. जो डिसीज इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, एक दूसरे को पास ऑन नहीं होते हैं टच से या खाने से, उन्हें बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. सच डिसीज अराइज बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू अ सर्टेन रीजन. ये अपने बॉडी में ही अपने आप ही हो जाते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ सर्टेन रीजन. लाइक कैंसर. कैंसर पता नहीं ये ऐसे ही स्प्रेड नहीं होता है, राइट? Then diabetes also there. Then heart attack, heart disease is also there. हार्ट डिसीज है घर में किसी को तो यू ट्रांसफर नहीं होता है एक दूसरे को टच करने से या खाने से पीने से. किसी को डायबिटीज है तो हमको डायबिटीज नहीं होता है. यू हैव टू learn about it more. Non-infectious disease, that disease which is not transferred by one to another, it's called non-infectious disease. First one is here cancer. अनकंट्रोल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर. बॉडी में जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो उसे बोलते हैं कैंसर. तो गठिया जैसा का हो जाता है, गांठ आ जाती है बॉडी में, कहीं भी आ सकती है. तो अगर ब्रेन में आ जाए तो हम उसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर बोलते हैं. लंग में आ जाए तो लंग कैंसर है. अगर ब्रेस्ट में है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे. ओके, दैट्स काइंड ऑफ कैंसर. ब्लड कैंसर इज ऑल्सो देयर. The group of lumps of cancerous cells is called malignant tumor. जो सेल का ग्रुप होता है जो अनकंट्रोल ग्रोथ है उसे क्या कहते हैं? malignant tumor. Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin, tissue like blood. यहाँ पे कहीं पे भी कैंसर हो सकता है. कैंसर इज द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल्स. Reason why it happen? Why does it happen? Now see, the consumption of tobacco, gutka, smoking, alcoholism, lack of fiber content fruits and leafy vegetables in food, excessive consumption of junk food like pizza, burger are some of many possible reasons. Heredity may also one of the reason. See, this cancer is related to our lifestyle. First of all, though, example is given here, consumption of tobacco. So many Indian people used to eat tobacco, having this bad habit, chewing tobacco. It's chewing gutka, smoking, alcohol, taking alcohol, drinking alcohol. It's lead to directly cancer. Alcoholism से क्या होता है? लिवर कैंसर. गुटखा, टोबैको, स्मोकिंग, टोबैको गुटखा से होता है माउथ कैंसर. एंड स्मोकिंग लीड्स टू योर लंग्स कैंसर. कोल टार जैसे स्ट्रक्चर आपके लंग्स में पनपता है, हो जाता है, जमा हो जाता है.
तो उसके कारण आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। इतना सारा अवेयरनेस है इंडिया में, हमारा गवर्नमेंट कितने सारे पैसे वेस्ट करता है ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, टीवी पे एडवर्टाइज दिखाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जब स्टार्टिंग में पिक्चर जाते हो कभी देखने के लिए, मूवी देखने जाते हो, तो वहाँ पे भी पहले तो यही सारे एडवर्टाइज आते हैं ना, डोंट ईट टोबैको, कैंसर पेशेंट के ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी हम खाते ही है। वो टोबैको का जो पूड़ी जो मिलता है ना पैकेट, उस पे तो कितना डर्टी पिक्चर, जैसे कि अभी आपके बुक में है, ऐसा डर्टी पिक्चर उसमें रहता है, फिर भी लोग उसे फाड़ के अच्छे से अंदर की टोबैको खा लेते। मीन्स हम खुद ही अपनी कबर खोदते हैं, ऐसे ही हो गया ना। सबको पता है, अवेयरनेस हो रहा है, लाखों करोड़ों पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं, घर में भी बोलते हैं, जो बच्चे खुद अवेयर हो जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं जो अवेयरनेस फैलाते, वो सारे बताते हैं कि अरे बाबा ये खाना बहुत ही बुरा है, इसे खाने से आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले ऐसे खाते हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे कैंसर होते हैं। पता नहीं इंडिया में कब तक ऐसे अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, हम खुद ही क्यों सीखते नहीं है कुछ। द कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, some kind of tissues. Then अल्कोहलिज्म लीड्स टू अ लिवर कैंसर। जो अल्कोहल पीते हैं ना, बस अरे पिए बिना होता ही नहीं, पीना ही चाहिए, क्या होता है, पीने से क्या होगा, लेकिन आगे चल के इससे लिवर का कैंसर हो जाता है। और जब लिवर का कैंसर होता है तो खाना हजम नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इट्स अ एंड इन टू डेथ ओनली। देन लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फूड, फाइबर कंटेंट फूड अगर नहीं खाओगे तो भी कैंसर हो सकता है। वाई? बिकॉज दिस फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और टू हेल्प एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। दैट्स वाई वी नीड फाइबर्स इन अवर फूड। फाइबर कहाँ पे होते हैं? फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स में। इन फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। आजकल तो होता है ना, घर में कुछ नहीं बनाए तो मम्मी पिज्ज़ा मंगाओ बाहर से, बर्गर बनाओ, नहीं तो मैकडोनल्ड में चले जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में चले जाते हैं, या फिर यहाँ पे है शॉप उसमें चले जाते हैं पिज्ज़ा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए। ये सब क्यों आपको अच्छा लगता है पता नहीं, बच्चे को तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आजकल अडल्ट्स भी इसको खाते हैं, बड़े अच्छे से चाव से खाते हैं। हाँ, महीने में एक बार खाना, एक आध बार खा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार खाना ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर है। आर सम ऑफ दिस मेनी possible reason. These are the some of the reason only. These are not the exact reason. These are some reason which may leads to a cancer. And about that, heredity is also a reason for cancer. हेरिडिटी से भी कैंसर हो सकता है। देन वी सी अबाउट द सिम्टम्स, विच आर द सिम्टम ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन swallowing। क्रोनिक कफ होता है, मीन्स जो खोखला मराठी में बोलते हैं, वो जो आता है ना खांसी, वो जाती ही नहीं है, इट्स अ क्रोनिक, बहुत लंबे दिन तक रहती है। हॉर्स वॉइस, आपका आवाज़ भी बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। डिफिकल्टी इन swallowing, आपको पीने में खाने में तकलीफ होती है। दिस इज द फर्स्ट वन सिम्टम। सेकेंड वन, इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, मीन्स अगर आपको कोई जख्म हो गया, कुछ हो गया, तो भरता ही नहीं है जल्दी से, और आपको सूजन भी हो सकती है। ये सेकेंड वन सिम्टम्स। देन लम्प इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में लम्प्स आ जाए तो ये भी एक बड़ा ही सिम्टम है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और जैसे कि वेट कम हो ही रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। हियर सम modern diagnostic and treatment of cancer is given in this. Do you know? Various techniques like CT scan, MRI scan, mammography, biopsy are used to diagnosis of cancer. ये लेटेस्ट टेक्निक्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, जिसकी वजह से हमको डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाती है कैंसर। इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट, along with in conventional method like chemotherapy, radiation therapy and surgery, modern techniques like robotics and laparoscopic surgery are also followed. मीन्स सर्जरी भी होता है, कीमोथेरेपी भी दिए जाते हैं, और रेडिएशन भी दिया जाता है। कीमोथेरेपी में
रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, रेडिएशंस में आपको रेडिएशन दिए जाते हैं, थेरेपी एंड सर्जरी में आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स है, इसे रोबोट भी यूज़ करते हैं ये टेक्निक्स करने के लिए। एंड ये टेक्निक होने की वजह से कैंसर पीपल में सर्वाइव, बट इफ़ इट इज़ डायग्नोस एट अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस हो गया तो ही कैंसर के लोग बीमारी आए जिसे वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। दैट्स वाई यू मस्ट बी अलर्ट अबाउट योर हेल्थ of yourself as well as in your family members. Here always remember, control the diet helps to prevent some types of cancer. अगर आपका डाइट कंट्रोल है तो आप कुछ प्रकार के कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना ही चाहिए, इट इज मच मोर बेनिफिशियल इन टू क्योर कैंसर। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, चिविंग, स्मोकिंग। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया है वो पिक्चर देख लो, उसके ऊपर जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। ओके, नाउ डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर द पोस्टर फॉर डिस्प्लेइंग इन क्लासरूम। वी मे डू इन इट फ्यूचर। डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ स्वीट्स, व्हाट दे बी पॉसिबल रीजन फॉर इट? ऐसे होता है ना, अब घर में आपका दादी दादा नाना नानी है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई शुगर की चाय नहीं चाहिए मुझे, हम चाय नहीं पीते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ मिठाई मंगाओ तो मिठाई खाते नहीं है, जो मीठा खाना नहीं बोलते। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है मीन्स क्या, उनको उनका शुगर लेवल उनको कंट्रोल करना पड़ता है। एक तो खूब बहुत बढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ कम भी होना नहीं चाहिए, तो उनको वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो डिसीज है वो हम देखेंगे कैसे है। डायबिटीज, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर एंड ग्लूकोज इन ब्लड। जो हार्मोन सिक्रेशन होता है इंसुलिन, इट्स पैनक्रियाज में सिक्रेट होता है। ये हार्मोन से हमारा बॉडी में लेवल ऑफ शुगर बना रहता है, जो ब्लड में शुगर का लेवल है बड़ा होता है, और ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये डायबिटीज होता है। इफ द इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन अ लो क्वांटिटी द ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, दिस डिजास्टर इज कॉल्ड डायबिटीज। इंसुलिन बना नहीं सकता है, अगर लो इंसुलिन बन रहा है तो उसकी वजह से ग्लूकोज का या शुगर लेवल इज नॉट कंट्रोल्ड इन योर बॉडी, in your blood, and it is lead to disorder is called diabetes. The symptoms which cannot be ignored, ये symptoms है जो आपको इग्नोर करने ही नहीं चाहिए। frequent urination at night, increased obesity और weight loss। क्या होता है इसमें? frequent urination में रात को बार बार आपको यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। एंड इंक्रीज ओबिसिटी मीन एक तो आप बहुत मोटापा आ जाता है आप पे, और वेट लॉस या फिर कम हो जाते हो, पतले हो जाते हो। रीजन फॉर डायबिटीज ये भी है रीजन, हेरिडिटी, अगेन इट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओबिसिटी मीन्स मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके लिए, और मेंटल स्ट्रेस, और जिनको ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है उनको भी ये डायबिटीज हो सकती है। लोग आसानी से बोलते थे ना ज्यादा मीठा खा लिया इसलिए डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो तो एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी इसका एक रीजन है। Now we see the preventive measures. How could we prevent this diabetes? First one, following the proper diet, medicine and exercise under the supervision and of doctor helps to keep the diabetes under control. डॉक्टर के सुपरविजन में आप मेडिसिन लो, एक्सरसाइज करो और डाइट कंट्रोल करोगे तो आप ये डायबिटीज का प्रिवेंशन कर सकते हो और बहुत अच्छी लंबी जिंदगी जी सकते हो। अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे डायबिटीज, शुगर लेवल मेंटेन नहीं करोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपको कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आपकी जख्म भरती नहीं है इसमें और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो शुगर डायबिटीज का सबसे बड़ा खतरा होता है कि शुगर लेवल बढ़ गई आपके शरीर में और आपने मेडिसिन या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके एक एक ऑर्गन खराब हो सकते हैं एंड इट्स लीड टू फटल मीन्स डेथ हो सकती है आपकी। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज
पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। हमारी आबादी कितनी है? 130 करोड़, और उस 130 करोड़ में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। मीन्स हमारी कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे है इन डायबिटीज पेशेंट के लिए। दैट्स वाई वी नीड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फ्रॉम योर होम। आप अपने घर से ही शुरू कर दो। आप खुद पहले एक्सरसाइज करो, अच्छी हेल्दी डाइट रखो, तो आपको ये डायबिटीज कभी होगा ही नहीं। इंटरनेट माय फ्रेंड, वॉच द वेरियस वीडियो गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डायबिटीज ऑन इंटरनेट, not important information and present in the class using MS PowerPoint and presentation. We may do this in future. Okay. Third one is heart disease that we heard regularly. It's a heart attack आ गया किसी को, हार्ट अरेस्ट हो गया, तो ये सब सुनते हैं ना। ये बंदा तो बाजू वाला बंदा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अंकल थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ गया, है ना। रेगुलरली वी हर्ड अबाउट इट, और उसमें वो मर गए। कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं उसे। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई इन हार्ट टू द मसल। डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड का सप्लाई कम हो गया है तो हार्ट की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। एंड देयर बाय द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो जाता है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज परफॉर्म मोर वर्क एंड लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। इसकी वजह से हार्ट को बहुत, हार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द पंपिंग ऑर्गन। आपको पता है ना, impure blood goes to lungs, clear blood come to again heart, and it's collected from all the veins and arteries. तो ये तो हार्ट इज ओनली अ पंपिंग ऑर्गन। जब उसको ब्लड ही सप्लाई कम हो जाता है तो उस पर स्ट्रेस आ जाता है काम करने का, उसकी वजह से अटैक हो जाता है। दिस में कॉज हार्ट अटैक। If someone has heart attack, immediate consultation of doctor and treatment is necessary. अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो इमीडिएट कंसल्टेशन डॉक्टर को करना बहुत ही जरूरी है। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। ये सिम्टम्स जो नीचे दिए गए हैं वो सिम्टम्स किसी को भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन मीन्स अगर चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है तो ये आपको इग्नोर नहीं करना है। पेन इन शोल्डर, आपके लेफ्ट हैंड में शोल्डर में पेन करता है, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। नेक एंड आर्म्स, नेक एंड आर्म में भी क्रैम्प इन हैंड्स एंड अनइजीनेस है, ट्रिमर्स। अनइजीनेस लगता है हल्का, मीन्स सोए जाए, बैठे उठे नहीं, क्रैम्प आ जाते हैं अपने हाथों में, आर्म्स में, नेक में, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स हैं। नाउ वी सी द रीजन ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की रीजन क्या है वो देखेंगे हम। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस एंड एंगर, एनेक्सिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, वो तो पता है, लेकिन स्मोकिंग लीड्स टू हार्ट अटैक ऑल्सो। देन अल्कोहलिज्म इज ऑल्सो सेम। डायबिटीज, that we seen already, it's a low quantity production of insulin in your body. Hypertension, ज़्यादा अगर आपको दिमाग पे स्ट्रेस है, आपको टेंशन है तो। ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं है तो। हेरिडिटी मीन इट इज़ वन जनरेशन टू ट्रांसफर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन मेंटल स्ट्रेस, अगर आपको, कुछ लोगों के मेंटल वर्क होते हैं, जो लोग मैनेजमेंट मार्केटिंग के काम में होते हैं, उनका बहुत ही स्ट्रेस लेवल हाई होता है मार्केटिंग में, तो ये काम पे भी डिपेंड करता है, तो उससे भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। देन एंगर, गुस्से में आप ज़्यादा गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो भी इट्स लीड टू हार्ट अटैक, एनेक्सिटी, etc. Now here heart disease diagram is given. For heart disease, which therapies are there? Which kind of treatment is there is given in these boxes? Heart diseases, bypass surgery. bypass surgery में यहाँ पे
ऑपरेशन होता है, अगर जहाँ पे कुछ चोकअप हो तो दूसरी आर्टरीज से वो कट करके वो चोकअप से वो नीचे से ही ब्लड सप्लाई स्टार्ट किया जाता है। बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, आपका चेस्ट को पूरा खोल के हार्ट की सर्जरी की जाती है, ये ओपन हार्ट सर्जरी। देन इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर बिठाया जाता है हार्ट में, वॉल जो होते हैं ना वहाँ पे बिठाया जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, स्टेंट्स भी बिठाए जाते हैं वहाँ पे। स्टेंट बिठाने के कारण जो गुठलियाँ वगैरह होती है ना वो होती नहीं है, वहाँ से आसानी से खून पास हो जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट, एक हार्ट दूसरे को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो भी हो सकते हैं। एंजियोप्लास्टी मीन्स जो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे दूसरा टुकड़ा लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी की जाती है। देन फर्स्ट एड, हार्ट अटैक अगर हमारे सामने किसी को आ जाए तो फर्स्ट एड क्या देना है? फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज, फर्स्ट कॉल 108। 108 सबको पता ही है क्या है, एम्बुलेंस का नंबर है। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर, उसके शोल्डर से दबा के थपथपा के देखो कि वो कॉन्शियस है या नहीं। कीप द पेशेंट लेइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको बैक में पोजीशन पे ही लिटाओ, उसको जमीन पे। ऑन हार्ड सरफेस एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, कंप्रेशन जो होते हैं ना COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, ये करना चाहिए आपको। टीवी पे गूगल पे है हाउ टू डू इट, आप देख सकते हो। इन दिस प्रेस एंड सेंटर द ऑफ थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 220 स्ट्रोक्स पर मिनट, आपको जोर जोर से 100 से 120 तक स्ट्रोक पर मिनट करने हैं 30 टाइम, जिसकी वजह से कुछ तो उसमें सुधार हो जाए कि ये जो हार्ट काम नहीं कर रहा है उसमें कुछ तो हरकत हो जाए। ये फर्स्ट एड में आता है, बट फर्स्ट यू कॉल टू योर डॉक्टर। हियर ऑल्सो इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक Ayurveda, homeopathy, natural healing, allopathy and Unani. These are the streams of our medicines only. Okay, तो इसका भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आजकल तो सारे ट्रीटमेंट लोग करते हैं, कुछ होम्योपैथी को जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक में जाते हैं, कुछ यूनानी ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इन फ्यूचर यू मे सपोज हेल्प ऑफ इट, राइट? हैव यू एवर सीन your grandparents taking the decoction? Discuss about it them. Decoction क्या होता है? Yes, do you know? Collect information from your grandparents about use of aloe vera, turmeric, ginger, garlic as medicines. तो आजकल तो कोरोना की वजह से सबको पता है कि आपको टर्मरिक, एलोवेरा यूज करना है, जिंजर यूज करना है, गार्लिक। क्यों? बिकॉज इट्स हेल्प टू बूस्ट योर